السلام علیکم، مرحبا، آداب۔ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم تیرا، بول کے جان اب تک تیری ہے، بول کے تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول کہ سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے، بول کہ لب آزاد ہے تیرے، بول کہ لب آزاد ہے تیرے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ سابقہ ہیلتھ منسٹر علی جناب ایٹل راجندر صاحب کو پینڈیمک سچویشن میں آنریبل چیف منسٹر ان کو نکال دیا گیا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا اسکرین پہ۔ لیٹس پلے آن دا اسکرین ناؤ۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ چیف سیکرٹری کا لیٹر ہے، اس میں آپ تاریخ بھی دکھیں گی اور ساری چیزیں بتاؤں گا کو انشاءاللہ تعالیٰ چاہے تو پوری کوشش کروں گا میں۔ یہ آپ کو اچم پیٹ کی زمین ہے، سارے ایویڈنس، سارے ڈاکومنٹس ہیں اچم پیٹ کی تقریباً زمین، وہ بھی بتاؤں گا آپ کو میں۔ 66 ایکڑز 1 گنٹا، 66 ایکڑز 1 گنٹا، یہ اس کا انیکچر ہے۔ اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ کس حد تک صحیح ہے۔ یہ حکیم پیٹ، اچم پیٹ دیکھ سکتے ہیں آپ اسکرین پہ، کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور شاید اس پہ کورٹ پہ بھی بات چیت ہوئی ہے اس پہ۔ اور یہ پینڈیمک سچویشن میں جہاں پر ایک ایسا واحد اسٹیٹ ہے تلنگانہ جہاں پر کوئی ہیلتھ منسٹر ہی نہیں ہے فی الوقت۔ دیکھیے، میں پہلے بھی ایک کمپلینٹ دے چکا تھا کافی دن پہلے، لاسٹ ایئر، نیتی آیوگ کو۔ اس پہ انکوائری بھی ہوئی تھی کہ حیدرآباد کے تالاب کی چور کون ہے بول کے۔ اس کے بعد میں نے اور ایک بھی کمپلینٹ دیا ہے 24 مارچ 2021 نیتی آیوگ میں، جس سے تالاب کے چور کے بارے میں انکوائری ہوئی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، انیشیٹڈ دا انکوائری پروسیس، پلیز چیک دا بلو یوٹیوب لنک۔ اور اسی کے فوراً بعد 24 مارچ 2021 کو میں نے اور ایک کمپلینٹ ریز کیا ہے الحمدللہ۔ However, I would like to add one more complaint about 1 lakh acres of Waqf land was grabbed by some local political party in Hyderabad. Therefore, I request you to kindly take the strict action and kindly get back the Waqf properties, which is more than 1 lakh acres. Please check the property in Urdu language. Link as follows. جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کو لنک بتاؤں گا میں، یہ دیکھیے آپ لنک۔ ہندوستان کا سب سے بڑا اسکیم، 1,33,209 ایکڑ وقف کی زمین کا۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ سیاست اور بدعنوانی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سارے سیاستداں ایسے نہیں ہیں، مگر بہت سے سیاستداں اپنی سیاست اور اثر و رسوخ کے ذریعے خوب دولت کمانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ بدعنوانی کا راستہ اپناتے ہیں۔ These are the elected representatives. اب تک کئی سیاستدانوں کو بدعنوانی کی پاداش میں جیل کی ہوا کھانی پڑی ہے، اور کچھ ابھی تک جیل میں چکی پیس رہے ہیں۔ لیکن کچھ سیاستداں ہزار بدعنوانیوں کے باوجود آزاد گھوم رہے ہیں، حالانکہ انہیں ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ ایسے ہی سیاستدانوں میں اویسی برادران کا نام آتا ہے۔ حیدرآباد کے یہ 2 بھائی اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی برسوں سے وقف و املاک پر راج کر رہے ہیں۔ یوں کہیے وقف املاک پہ ان کا سکہ چلتا ہے۔ کیا وقف کی پراپرٹی اویسی برادران کی ذاتی ملکیت ہے؟ اسد الدین اویسی 1995 سے آندھرا تلنگانہ وقف بورڈ میں ہیں۔ ان سے پہلے ان کے والد سلطان صلاح الدین اویسی
और उनके दादा वहीदुद्दीन ओवैसी भी वक्फ बोर्ड में थे। इसके बावजूद वक्फ की 1,33,209 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ। ये घोटाला यही नहीं रुका, बल्कि अभी भी जारी है। वक्फ बोर्ड कमर्शियल प्रॉपर्टीज ओवैसी साहब के घर वालों के नाम पर है, जिसका किराया 2,000 से कम है। हैदराबाद के कब्रिस्तान की प्लॉटिंग करने वाले ओवैसी साहब के जमीन माफिया आजाद घूम रहे हैं। अगर इसी तरह अराजी पर कब्जा होता रहा तो मुसलमानों को तदफीन के बजाय हीटर में जलाया जाएगा। इस तरह हैदराबादी बिरयानी और आज की गंदी सियासत की शेरवानी ओवैसी बिरादरान मुल्क के सबसे बड़े घोटाले में मुलव्विस हैं। इसके अलावा AIMIM रजाकार पार्टी ने 1948 में 5 लाख से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस एक्शन में मरवाया था। MIM ने सियासी फायदे और दारुल इस्लाम एजुकेशन ट्रस्ट में मौजूद उस वक्त के हुक्मरान निजाम की आमदनी के 31% रकम को हासिल करने के लिए DET घोटाला किया और आज हिंदुस्तानी मुसलमानों को मरवा रहे हैं। ओवैसी बिरादरान के दामन पे जगह जगह घोटाले के छींटे मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतने बड़े कारनामों के बाद तो दोनों भाइयों को जेल में होना चाहिए, मगर ये सियासी गलियारों में बयानबाजियां करते रहते हैं। हम CBI, ED और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से दरख्वास्त करते हैं कि वक्फ और DET घोटाले की जांच कराई जाए और उनकी पार्टी के कसूरवार कारकुनों और लीडरों को गिरफ्तार किया जाए, ताकि मुल्क से ऐसे बदउनवानों भ्रष्टाचारों का सफाया हो सके जो हिंदुस्तान के पवित्र दामन पे एक बदनुमा दाग है। अगर कहा जाए कि MIM पार्टी की आदत फिरौन और नमरूद जैसी हो गई है, तो ये कहना गलत ना होगा। इसी मौजू पे मैंने आपकी और हमारी बहन साबिक़ा चीफ मिनिस्टर YS राशिद रेड्डी की बेटी YS शमी से मेरी मुलाकात हुई थी चंद दिन, तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले। मैंने सारी चीज़ उनको बताई। इंशाअल्लाह उन्होंने वादा किया कि यकीनन वो इसका साथ देंगी। जिस तरीके से इनके वालिद मोहतरम मरहूम कई स्कीम्स निकाले थे तेलंगाना में, जो आरोग्यश्री है, माइनॉरिटीज के लिए एजुकेशन के लिए आज कई बच्चे माशाल्लाह इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। उसी सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई हमारी अपनी बहन, आपकी अपनी बहन शर्मिला बहन से। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वादा किया है कि इसका यकीनन इसका साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। वसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। वसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये चराग कई आंधियों पे भारी है। ये इंशाअल्लाह ताला वक्त बताएंगा। ये अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे। जितने भी लोग हैं मेरे अपने लोग ही हैं, मेरे अपने भाई हैं, मेरे अपने लोग ही हैं, मेरे अपने हिंदुस्तानी भाई हैं। हम सब एक आदम की औलाद हैं, इर्रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक आदम की औलाद हैं। और जितने भी लोग ये वक्फ प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्व हुए हैं, अल्लाह के वास्ते आज जो अल्लाह का अजाब आ रहा हम पे, एक ऐसा दुश्मन हम पे वार कर रहा है जिसको हम ना देख सकते हैं, जो वो कोरोना वायरस। इस तरीके से अल्लाह ताला ने अबाबील को भेजा था अबरहा की फौज को तबाह करने के लिए। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने कोरोना वायरस को भेजा हमारी अना को तबाह करने के लिए। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। अल्लाह के पास हमेशा माफी के दरवाजे खुले हैं। अल्लाह से माफी मांगो। यकीन मानिए, यकीन जानिए आप लोग, मुझे किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है मुझे। मेरा मानना एक ही है,
सच का साथ, हक का विकास। मैं कोई मन की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मौका है, सब एकजुट हो जाओ, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफी मांगो, ताकि कोरोना वबा चले जाए। अल्लाह हमसे नाराज है। लाख बात की एक बात है, जिस तरीके से वालिद या वालिदा नाराज होकर अपने बेटे को घर से निकाल देती हैं, उसी तरीके से आज अल्लाह ताला ने हमको अपने घर से महरूम कर दिए। ना हम नमाज पढ़ सक रहे, अल्लाह माफ करे, ना हम इबादत कर सके, अल्लाह माफ करे। हमारी टूटी फूटी नमाजें, टूटी फूटी दुआएं, हम गुनहगार हैं, अल्लाह हमको माफ कर दे। ए अल्लाह हमसे राजी हो जा, ए अल्लाह हमसे राजी हो जा, हम गुनहगार हैं, अल्लाह हमसे राजी हो जा। ए अल्लाह जितने भी मेरे भाई हैं उन सबको ने हिदायत दे, ए अल्लाह। और जितने भी लोग ये वक्फ प्रॉपर्टीज में मुलविस हैं, आपसे अदबन गुजारिश है, आपसे यकीन जाने मुझे कोई साथी दुश्मनी नहीं है, मेरे भाई हैं, खुदा की कसम आप मेरे भाई हैं, इसमें कोई जाती दुश्मनी नहीं है। यकीन जानिए आपकी बीवी खुदा की कसम मेरी बहन के बराबर है। जितने भी लोग मुलविस हैं, बराए करम मेहरबानी, अल्लाह के पास माफी का दरवाजा हमेशा खुला है। अभी भी अब भी वक्त है, तौबा कर लो और पूरी प्रॉपर्टी ईमानदारी से वापस करो। ईमानदारी से 1,32,000 चिल्लर एकड़ जमीन। आज एक ऐसा दौर है, एक गज जमीन के लिए भाई के ऊपर भाई केस डालता है, एक गज जमीन के लिए। तो हम क्यों कुछ चुप रहे हैं मेरे भाई? अब बात आ गई 1,33,000 एकड़ जमीन की विथ एविडेंसेस। वो वीडियो आया यूपी से, जो मैंने बताया था आपको, विथ एविडेंसेस। तो मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं मेरे भाई, मैं हाथ जोड़कर आपको विनती करता हूं मेरे भाई, जो भी मुलविस हैं इसमें वक्फ प्रॉपर्टीज में, अल्लाह के वास्ते वो वापस कर दें, वरना या तो बच जाओगे, शायद तुम्हारे पास ताकत है, पैसा है, लेकिन खुदा की कसम हिसाब ऊपर देना है, ये बात मत भूलिए। हिसाब अल्लाह के पास है, you are accountable there, you are accountable there, there is no excuse at all over there, please। बस मेरे भाइयों बहनों, अगर मुझसे गलती हुई तो मैं माफी चाहता हूं और अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।